last class we discussed about that what is brand equity. We already understand that the value of the brand is basically brand equity. It will show the response or willingness of the consumer toward your brand, right? If the brand equity is high, then obviously you are able to sell more and more products. Your customer will be loyal, right? So how we are able to basically achieve this? So I told you 5 points under the brand equity. I guess सबको remember होगा, याद होगा सबको वो सारे points. These are brand loyalty. So brand loyalty is responsible for brand equity. Second one is name awareness. More and more people are aware about the brand. They are able to recognize the brand, and then after they are able to purchase the product from your brand, right? Next one is perceived quality. That what is the meaning of perceived quality? Like whatever the customer is expecting from your company, from your brand, you are providing same quality to the customers, right? So if you are selling branded product, it is your duty, the duty of the company to provide the better and best product to the consumers. Okay, so perceived quality. It might be possible some brands are basically promoting, some companies are promoting their brand, but they are not able to provide the goods or services what the customers are expecting. In that situation, in long run, it is possible that your brand equity will be decline or reduce, right? तो चलिए brand equity में हम लोगों ने ये किया था perceived quality, then brand association, that how the customers are feeling brand associated with the brand. If the brand equity is high, then the brand association is also high. And the next one is other assets. So how we can learn these point? ये सब point को कैसे learn कर सकते हो? तो इसके लिए मैंने एक shortcut acronym निकाला है. आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से. I am sharing the screen. Okay. See everyone, देखिएगा इसको. Every student mute रहिए. सब लोग mute रहिए बच्चे. चलिए. So P N and B. PNB सबको पता है क्या होता है? क्या है PNB? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक है, लेकिन Yes, यहाँ पर है बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक. इससे आपको ये पूरा याद हो जाएगा टर्म. कैसे? बी से हो जाएगा ब्रांड लॉयलिटी. ब्रांड लॉयलिटी हो जाएगा बी से. ओ से हो जाएगा अदर एसेट्स, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था ट्रेडमार्क्स वगैरह अदर एसेट्स. पी से आपका हो जाएगा परसीव्ड क्वालिटी. परसीव्ड क्वालिटी. देन एन से आपका हो जाएगा नेम अवेयरनेस. ठीक है. और नेक्स्ट बी से हो जाएगा ब्रांड एसोसिएशन. तो इस तरीके से आपको ये पूरे टर्म्स ब्रांड इक्विटी के अंडर में याद हो जाएंगे. बैंक से ले लीजिए बैंक ब्रांड लॉयलिटी. ओ से अदर एसेट्स. पी से परसीव्ड क्वालिटी. एन से नेम अवेयरनेस एंड बी से आपका आ जाएगा ब्रांड एसोसिएशन. सबको क्लियर हो गया एवरीवन? क्लियर हो गया? यस मैम. ठीक है. Okay. So we completed this topic brand equity. Now we are going to move toward the next point, and we already moved, I guess, in the last class. That was brand strategy decisions. So brand strategy decision related with how we are making strategies for branding, how we can do branding, right? So there are some strategies for that which we discussed. The first one is brand positioning. What is the meaning of positioning? Who is going to tell me about it? What is the meaning of positioning? What is the meaning of positioning? Raise your hand. What is the meaning of positioning? Raise your hand. Yes, yes, Vaishnavi. मैम कस्टमर को कैसा हम अपना ब्रांड इमेज शो करते हैं, उस प्लेस कैसा शो करते हैं प्रोडक्ट का. Okay. Yes, Satish. Yes, Satish. मेरा जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर के माइंड में क्या मतलब इमेज बनाते हैं मैम. Very good, very good, very good. Both of you good. What is the meaning of positioning? Positioning is basically it is a strategy that the company is using for promoting their brand. How they can showing their product and what image the consumers are making in their mind about your product.
So that is positioning, right? So in positioning, we discussed about the 2-3 points in this. Who is going to tell me about it? That how we can do brand positioning? Who is going to tell me about it? Yes, Ankit. Yes, Ankit. मैम ब्रांड पोजिशनिंग का पहला पॉइंट है एट्रीब्यूट. मैम इट मींस इट मींस फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट. मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट में कैसे फीचर, मतलब कि उस प्रोडक्ट को यूज करके कस्टमर किस तरह से बेनिफिट अक्वायर कर रहे हैं. थर्ड है मैम बिलीव एंड वैल्यू. मैम प्रोडक्ट के लिए कस्टमर का बिलीव कैसा है प्रोडक्ट यूज करने के बाद. ठीक है, good. I guess there is some network issue, Ankit, so I'm not able to hear you clearly. But okay, who is going to tell me about it? Next student. Yes, Sandeep. मैम इसका फर्स्ट पॉइंट था एट्रीब्यूट, जिसमें हम प्रोडक्ट का फीचर शो करते हैं. सेकंड पॉइंट था बेनिफिट, जिसमें हम प्रोडक्ट का प्रॉफिट शो करते हैं. थर्ड पॉइंट था मैम बिलीव एंड वैल्यू, जिसमें हम ट्रस्ट शो करते हैं प्रोडक्ट का. Very good. So I basically give 1 point for each point. हर एक point के लिए एक और point मैंने बताया था, second alternative point, and that was for attribute. There that is features. Second one is benefit. That benefit में क्या होगा? Profit and beliefs and values related with the trust. So in the brand positioning, the marketers can position their product in the mind of the customers by 3 ways. The attributes. If we'll take the example of the peer face wash, so what can be the attribute? यानी feature क्या है? तो to clean the face, obviously face wash का सबसे important काम क्या होगा? Face को clean करना. So that is a basic feature. So that is इसको किस में हम रखेंगे? Attribute में, right? Now the second one is benefit. So benefit, it refers to that what benefit exclusively this product is providing to you. ठीक है, यानी जो बाकी फेस वॉश कंपनीज बेच रही हैं उसके कंपैरेटिवली में आप क्या एक्सक्लूसिव बेनिफिट या प्रॉफिट कस्टमर को दे रहे हो. सो बेनिफिट कैन बी दैट इट इज बाय विथ क्लीनिंग द फेस, इट इज आल्सो basically providing the soft skin, right? So it is one of the benefit we can say for the Pierce face wash. The next one is beliefs and values. Like the marketers can position their product in the mind of the consumer by giving them strong belief that whatever product you are using of my company, you will get better result. So in short we can say, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई ट्यूशन सेंटर, स्कूल्स, कॉलेजेस का अगर हम बात करें, so in every educational centers what is going on? Education provide होता है, true. Benefit क्या हो सकता है उनके लिए? Like you will get the additional facilities like the library facilities there are multiple societies in which you can participate. And if we are talking about the belief, then they will tell you that they will provide you better placement opportunities. So that is one of the belief we can say, right? So the same thing is with this face wash, that in beliefs and values the company will try to basically influence you, persuade you that if you will purchase this product, if you will use this product, then you will get the better result as well as you will look attractive. Okay? So this is a kind of promise which the companies makes for their products with whom? With consumers, right? So these are the 3 points for the brand positioning. By features, क्या फीचर है, कैसे काम करेगा प्रोडक्ट, by benefits, what profit you will get, and the belief that the promise, the trust the company will gain for their product. So this is brand positioning. I guess सबको clear हो गया होगा ये point? Everyone? Yes, ma'am. Okay. So in the last class we also discussed about the brand name selection. Like if we are choosing our name for the product. For example, if I'll start selling this specs, I am going to choose the name of this product, right? इसका नाम रखेंगे, नाम choose करेंगे. So किस type से हमें क्या strategy adopt करना चाहिए when we are selecting the name? So first one is easy to pronounce. Easily लोग जो है उसका नाम बोल सके, ठीक है? जैसे Rin is a very small name, RIN only, right?
tide, TIDE only, very less letters as well as it is easy to pronounce, बोलने में आसानी हो, ठीक है. Second one is distinctive, like if the other companies are selling the product, for example में अगर कोई शूज का एग्जाम्पल है, रिबॉक कंपनी है, ठीक है. अब रिबॉक जो है उसका ऑलरेडी मार्केट में क्या है, रेप्यूटेशन है, और मान लीजिए कोई आया, कोई कंपनी, दे आर ऑल्सो सेलिंग द सेम शूज एंड दे यूज रिबॉक. तो इन दैट सिचुएशन द कस्टमर्स आर नॉट एबल टू डिस्टिंक्ट द नेम, मतलब उनको दोनों नाम काफी सिमिलर लगेंगे, है ना. तो इन दैट सिचुएशन वी जस्ट नीड टू यूज द डिस्टिंक्ट नेम, थोड़ा अलग नाम होना चाहिए. सजेस्ट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट, ऐसा नाम हो जो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बताए. जैसे मैंने बताया था फेयर एंड लवली, सो फेयर एंड लवली, अब शायद उसका नाम भी ग्लो एंड लवली हो गया है, बट फेयर एंड लवली और ग्लो एंड लवली, एनीथिंग दैट इज शोइंग that after using it you will look pretty, in short, right? So the name should be suggestive and it is basically showing, it is basically indicating toward the product use or benefits or qualities, ठीक है. So suggest products benefit. Extendable, the name can be extendable like amazon.com, so we can say that it can be extended as well. नेक्स्ट वन इज इट इज अ कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन. द नेम जो होना चाहिए वो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिसके लिए लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे. जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि जो नाम होना चाहिए वो आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, जिस नाम के लिए लोग उसको एक्सेप्ट ना कर पाए सोसाइटी में, ठीक है. सो नॉन एक्सेप्टेबल नेम नहीं होना चाहिए, और जिसको इजिली हम क्या कर पाए, रजिस्टर कर पाए, जिसको ट्रेडमार्क इजिली हम बना पाए, इसके लिए नाम जो होना चाहिए वो नॉन एक्सेप्टेबल सोसाइटी के द्वारा नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, एबल टू ट्रांसलेट इट इनटू द फॉरेन लैंग्वेज. नो डाउट कि वी आर नॉट नाउअडेज, वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट टू आवर डोमेस्टिक कंट्री, बट we are also selling the product to international market, right? Because of the globalization we are easily able to purchase the foreign goods, है ना. सही बात है. तो हम भी तो यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं तो दूसरे कंट्री में सेल कर सकते हैं. तो नाम आप ऐसा अपने ब्रांड का यूज कीजिए, अगर उसको दूसरे लैंग्वेज में चेंज किया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन जो कंज्यूमर्स हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करे. सो नेम शुड बी इजीली ट्रांसलेट इनटू द फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है. नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन, मतलब वो रजिस्ट्रेशन करवा सके. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द गुड नेम, और कह सकते हैं दीज आर द स्ट्रैटेजीज फॉर चूजिंग द ब्रांड नेम. ओके, सो आई गेस सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो हाउ वी विल सेलेक्ट द नेम, क्लियर हो गया. चलिए, यहाँ पर एक और भी है टर्म, दैट इज इंडिविजुअल ब्रांड नेम. अच्छा, इंडिविजुअल ब्रांड नेम क्या होता है, चलो मैं बताती हूँ आप लोग को. हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड दे आर सेलिंग द FMCG गुड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है. सो ये सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाता है. अब हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो दे हैव सो मेनी ब्रांड्स इन दैट, ठीक है. जैसे उनके पास लक्स है, फिर उनके पास सर्फ है, रीन है, व्हील है, हमाम है. दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, राइट. सो इन दैट सिचुएशन दे हैव लक्स, पियर्स, लाइफबॉय. सो फॉर ईच प्रोडक्ट इंडिविजुअल ब्रांड नेम का मतलब होता है जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो they are using the distinct or different name from their manufacturing company. Means they are not selling that with the name of Hindustan Unilever, but they are using the different name for every product. Like for there is a Lifebuoy, that is also a bathing soap, but the name is different. There is Pierce, that is also a bathing soap, but the name is different. So individual brand name. Here for each product the company is giving the independent brand name. इसको कहते हैं individual brand name, ठीक है. क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो देयर इज वन मोर नेम. एक तो ये हो गया इंडिविजुअल ब्रांड नेम, जहां पर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग नाम दे रही है. एक होता है फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांड नेम. इसको क्या बोलते हैं, फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांड नेम.
फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांड नेम। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, देखिए कि जैसे अमूल हो गया। अच्छा, अमूल में आपने देखा है कितने सारे प्रोडक्ट्स है, दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, दे आर सेलिंग पनीर, दे आर सेलिंग मिल्क, दे हैव बटर, they have cheese, they are selling ice cream, they have sweets, they have chocolates, but for each and every product they are using only one name, and that is Amul. True? True? सही बात है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब चलिए मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन इफ दे आर मेकिंग बाथिंग सोप, दे आर यूजिंग डिफरेंट नेम, लाइफ बॉय, पियर्स, हमाम, तो दे हैव डिफरेंट नेम फॉर ईच बाथिंग सोप। बट इन द सिचुएशन ऑफ अम्ब्रेला और फैमिली ब्रांड नेम, या फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांड नेम, the one brand name is going, the manufacturer is going to use for selling each and every product. Like if we are taking ice cream of Amul, the Amul is written over that. Okay? If we are purchasing chocolate, Amul is written over that. If we are purchasing milk, Amul is written over that. So for every product, they are using same name, right? So that is known as umbrella or family brand name. बट जस्ट उसको हम वाइस वर्सा, जब उसको सिचुएशन को बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, दे आर यूजिंग द इंडिविजुअल ब्रांड नेम। आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको, ये पॉइंट क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ओके ओके, कोई डाउट किसी को यहाँ पर इंडिविजुअल ब्रांड नेम में और फैमिली ब्रांड नेम में किसी को कुछ पूछना है? फैमिली ब्रांड नेम में बता दीजिए। हाँ, फैमिली ब्रांड नेम का मतलब है बच्चे कि आपका एक ही ब्रांड का जो नाम होगा, मतलब एक ही नाम, एक ही नेम, जैसे अमूल है तो एक ही नाम है वो। अब वॉट एवर दे आर सेलिंग, अब अगर वो नया प्रोडक्ट भी लेकर आते हैं तो दे आर गोइंग टू यूज ओनली वन नेम, ब्रांड नेम, एंड दैट इज अमूल। ठीक है, तो दैट इज फैमिली ब्रांड नेम। दे आर नॉट यूजिंग द डिस्टिंक्ट, जैसे चीज का नाम कुछ XYZ नहीं रख दिया, चीज का नाम कुछ और नहीं रख दिया, दे आर यूजिंग ओनली वन ब्रांड नेम एंड दैट इज अमूल, एंड by using that brand name they are selling multiple products, so that is known as family brand name or umbrella brand name. clear हो गई बात? समझ में आ गया सबको, everyone? Yes, okay. yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Let's move toward the next point. next point की तरफ move करते हैं, ठीक है, and that is company name as a brand name. ठीक है, कंपनी नेम एज अ ब्रांड नेम। अच्छा, फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांड नेम में यू कैन राइट द एग्जांपल, इंडिविजुअल ब्रांड नेम में यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, यू कैन राइट डव, लक्स, पियर्स, ठीक है, एंड इन द फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांड नेम यू कैन राइट लैक्मे। लैक्मे के भी प्रोडक्ट जो भी आते हैं वो लैक्मे के नाम से ही सेल होते हैं, देखा है आप लोगों ने, नोटिस किया है? सिर्फ लैक्मे ही रहेगा, आइदर दैट इज अ आईलाइनर, either that is a face powder, for everything they are basically going to use the same name and that is Lakme, right? Yes ma'am. And for the Amul are doing the same thing. Yes Sandeep? मैम पतंजलि को रख सकते हैं अम्ब्रेला ब्रांड में? अम्ब्रेला में पतंजलि, yes, you can take it that name as well. Yes, sometime जैसे कि they are selling the name Lakme यूज करते हैं, but कुछ कई बार जैसे आइकॉनिक उन्होंने रख दिया काजल के लिए, तो sometime they are using some sub brand name as well, but majority of the time they are selling the product with the same name. So that is Lakme you can take the example of Amul for the brand name. So company name as a brand या company brand name में क्या होगा, company use the some companies use the company name as the brand name, मतलब मैन्युफैक्चरर से वो अलग होगा। फैमिली और अम्ब्रेला में क्या था कि कहीं ना कहीं एक ही नाम के अंडर में सब कुछ मैन्युफैक्चर भी हो रहा था, अमूल ही मैन्युफैक्चरर भी है और अमूल ही प्रोडक्ट को सेल भी कर रहा है अपने ही नाम से, ठीक है। कंपनी नेम एज अ ब्रांड नेम में कुछ कंपनीज ऐसे होंगे जो कंपनी नेम को यूज करेंगे ब्रांड नेम के लिए, जैसे एग्जांपल में फिलिप्स, ठीक है, बजाज, कैडबरी, सैमसंग, गोदरेज, तो दीज आर द कंपनी ब्रांड नेम। तो यहाँ पर कंपनी अपना नाम को क्या करेगी, यूज करेगी, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि कंपनी एक नेम को सजेस्ट करेगी उस नाम से प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरर सेलिंग नेम कैन बी डिफरेंट,
right? So logo, what is the लोगो meaning में of logo? लोगो मतलब होता है जैसे कि किसी चीज, जैसे आप यस मैम, ब्रांड लोगो मीन्स हुआ कि मैम कोई भी कंपनी एक अपना ब्रांड नेम तो अलग हुआ और वो लोगो भी रखती है कि पहचान के लिए। किसी को अगर ब्रांड का नेम पढ़ने नहीं आया तो वो लोगो से पहचान जाएगा कि हाँ इस कंपनी का है लोगो। Very good. Yes, Vaishnavi. यस मैम, इट्स अ सिंबल जिससे हम अपने ब्रांड को रिकॉग्निशन देते हैं। Good. Ankit. Yes, ma'am. If you take an example of Rolex watch, ma'am, Rolex logo है as a crown, ma'am. Crown की तरह logo है, ma'am, ऐसे. Okay, good. Yes, Suraj. इसमें ब्रांड के मतलब कोई भी मतलब किसी चीज को मैं प्रोडक्ट को मतलब बेचने करने के लिए मैं बेचने के लिए, हाँ, लोगो हाँ. होता है मैं जिससे हम पहचान सके कि ये ब्रांड का सामान है। It is a, we can say, listen very carefully, it is a pictorial representation, or we can say it is a symbol which is easy or helpful for the consumer to recognize the brand. For example, if we'll see कि एयर इंडिया में अगर हम देखें, खैर अभी तो that is privatized now, but we are able to see the logo that a person is standing by using their hand like this, right? So we can say it is a logo which is basically helping the customers to identify that what company is this, right? Amul mein we are able to see that there is a one girl who is always used in the Amul advertisement, who is eating cheese or something, a small girl. Wait, I am just showing. We can say the brand logo selection, that logo is along with the brand name. It is a visual identification जिसको हम देख करके हमें एक आइडिया लग सकता है कि हाँ देखा हमने, एक मतलब एक बोल सकते हैं ना कि नाम अगर याद नहीं है तो with that logo we can basically identify the product. ठीक है? It is a pictorial symbol for, and it is used for communicating with the consumer. So basically logo improve the recognition of the product by the customers. ठीक है? लोगो क्या करता है? लोगो इंप्रूव करता है रिकॉग्निशन, याद करने की, मतलब याद कर सके, पहचान सके, ये आपका कौन हेल्प करता है? दिस लोगो, राइट? सो वर्ड, लेटर्स, लोगो जो होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, दैट कैन बी मेक ऑफ द वर्ड. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैकडी का जो लोगो है ना, दैट इज दिस एम, ओनली एम इज देयर. सो दिस इज अ लोगो, ओनली एम इज देयर, सिर्फ ऐसे बड़ा कैपिटल एम है. सो लोगो जो हो सकता है that is in red color, so they are using two combination, red and yellow. MACD is using that two combination. So logo जो होता है that can be of the words, letters, graphic and pictures. ठीक है? And अगर हम एयर इंडिया में देखें तो there is a one Maharaja which is there for as a logo of the brand. Yes, Arman? यस मैम, जैसे मैकडोनल्ड भी है ना मैम, वो एम का सिंबल दिया हुआ है इस लोगो का। हाँ, that is M only, they are using M. ठीक है? And they are using the color combination yellow and red. ठीक है? And Air India में Maharaja is there who is wearing the red color clothes. ठीक है? Amul Butter, there is a girl. Asian Paint, there is a Gattu, the boy. So brand logo selection clear हो गया. That is, logo is basically a बोल सकते हैं pictorial representation or a visual representation for influencing the customers or for help, and that is helpful for identifying the product or brand. ठीक है? So let's do like the name selection. That should be simple, like the people are easily recognized, and that should be attractive as well. Always remember that if you are presenting one picture, that should be attractive, कि customer के mind में वो picture बिल्कुल set हो जाए. So attractive होना चाहिए, simple होना चाहिए, और easily able to understand, मतलब वो basically वो understand कर पाए picture को देख करके. ठीक है? वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो picture इतना confusing हो कि भाई आप उसको 1 घंटे तक सोच रहे हो कि ये क्या represent करना चाह रहे हैं. So that confusion नहीं होना चाहिए. ठीक है? So clear होना चाहिए, simple होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब इम्पैक्टफुल होना चाहिए, जो कस्टमर के दिमाग में कि इम्पैक्ट, पॉजिटिव इंप्रेशन दे. ठीक है? उसके अलावा रिलेवेंट होना चाहिए. ठीक है? दैट शुड बी रिलेवेंट. रिलेवेंट मतलब यूजफुल लगे, लोगो यूजफुल दिखना चाहिए. क्लियर हो गया सबको? 20 पॉइंट सारे लिख लिया सब लोगों ने? यस मैम। Attractive, impactful, simple, easy to recognize,
उसके अलावा रिलेवेंट. So these are the basically we can say features of a brand logo. It is a pictorial representation. Pictorial representation. Okay, so I guess these points are clear. The point clear Yes, हो गया ma'am. सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let's move toward the next point. Let's move toward the next point. That is brand sponsorship. Brand sponsorship. Okay. So what is the meaning of sponsorship? Who is going to tell me about it? Sponsor करने का मतलब क्या होता है? Anyone raise your hand. Yes, Kaushal. स्पॉन्सर करने का मतलब हुआ मैम कि कुछ भी जैसे शो वगैरह में दिखाया जाए कि इस चीज का स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे कार वगैरह का स्पॉन्सरशिप होता है मैम. In short, we can say that using of the third party. यस मैम. Yes, Sandeep. मैम स्पॉन्सरशिप मींस मैम कोई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करता है, वो कहता है कि Okay, good. Yes, Arman. इसमें स्पॉन्सरशिप मतलब जैसे कि अभी आईपीएल का स्पॉन्सर टाटा कर रहा है, तो इसी तरह से जैसे आईपीएल है तो वो टाटा भी स्पॉन्सरशिप कर रहा है मैम. Good. ठीक है. So these are the example that Tata is a sponsor, IPL जो है उसको स्पॉन्सर कर रहा है. ठीक है. तो स्पॉन्सरशिप का मतलब बेसिकली क्या है, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ इसको. It is a mean of advertising the product. It is a mean of advertising the product and via using the particular companies. ठीक है. जैसे जिसको वो फंड प्रोवाइड करता है. स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है they are funding that particular company. ठीक है. So brand sponsorship, it is a marketing strategy in short, in which the brand is supporting an event. मतलब कोई brand है, event को support कर रहा है. Let me tell you that the sponsorship is always happened in my college as well. When there is a fest or parties, so many companies are ready to sponsor our college. So sponsorship is basically, it is a way of branding in a event or in a occasion. ठीक है. जैसे टाटा जो है वो अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है बाय आईपीएल. ठीक है. तो इट इज अ काइंड ऑफ मीडियम फॉर एडवर्टाइजिंग अबाउट योर ब्रांड. ठीक है. सो ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्या होता है, इसको लिख लीजिए सब बच्चे. राइट. सो ब्रांड स्पॉन्सरशिप is a marketing strategy. It is a marketing strategy in which a brand is supporting. Brand sponsorship is a marketing strategy in which a brand is supporting an event, activity, person, activity, person. Brand Ma'am, repeat, sponsorship. हाँ. Brand sponsorship is a marketing strategy. Brand sponsorship is a marketing strategy. Is a marketing strategy. Is a marketing strategy in which a brand is supporting an event. In which a brand is supporting an event, activity, person or organization. Activity, person or organization. और हम लोग देखते हैं स्पॉन्सरशिप इन्वेस्टमेंट बहुत सारी जगह पे होता है. जैसे अभी आपने आईपीएल वाला एग्जांपल दिया, मैंने अपने कॉलेज वाला एग्जांपल दिया कि फेस्ट में क्या होता था, स्पॉन्सर करते थे. मतलब वो म्यूजिक जो भी कंसर्ट होता था उसको उन्होंने स्पॉन्सर किया, यानी उसमें पैसा लगाया, फंड लगाया, और उसके बदले में क्या होगा कि नाम जो होगा, नेम जो होगा वो यूज करते. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल पे ऊपर लिखा होता है प्रेजेंटेड बाय बोरोप्लस, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल. So why they are using such kind of thing? Because so many consumers are watching that music concert, watching that serial. So they are get consumers from that, right? So in my college event, I told you that the sponsorship होता था. They are basically putting posters everywhere in the college. मतलब हर जगह पे वो posters को लगा देते थे वो कंपनी. तो एक तरीके से वो कंपनी का एडवर्टीजमेंट हो रहा है. और ऐसा करने के लिए क्यों अलाउ किया गया है?
बिकॉज उसका फंड जो है, मतलब उस कंसर्ट का फंडिंग जो है उस कंपनी ने किया है. So company is using billboards and they are basically using posters for advertisement. Yes, Arman. यस मैम, जैसे कि रजनीगंधा स्पॉन्सरशिप दिया हुआ है शाहरुख खान और क्या कहते हैं नाम, नहीं, वो शाहरुख that खान is और not ये है. sponsorship. That is Yes, not ma'am. sponsorship, बेटा. That is a basically brand ambassador का रोल है वो तो. कि वो ब्रांड एम्बेसडर है तो वो प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. जो सेलिब्रिटी जो है वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. दे आर इंडोर्सर. ठीक है, उनको इंडोर्सर कहते हैं. लेकिन आपका स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि जब आपके कंपनी को आपके म्यूजिक कंसर्ट या आपके कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए फंड, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया और मैंने म्यूजिक कंसर्ट करना है, मुझे पता है उसमें 50 लाख का खर्च है. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगी, मैं स्पॉन्सरशिप लेने जाऊंगी. मुझे 5-6 कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिल गया. दे आर पेइंग मी 5-5 लाख. मान लीजिए मुझे 5 लोगों ने 5-5 लाख दे दिया, मतलब 25 लाख. अब वो 5 कंपनी मेरे म्यूजिक कंसर्ट में पूरा के पूरे पोस्टर्स लगाएगी, एडवर्टीजमेंट करेगी अपनी कंपनी का. आ रही बात समझ में? तो दैट इज स्पॉन्सरशिप. क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आया? यस मैम. ठीक है, इट इज अ मीन ऑफ एडवर्टाइजिंग इन शॉर्ट. इसको बस याद रखिएगा कि एक तरीका है एडवर्टीजमेंट करने का. और स्पॉन्सरशिप अलाउज बिग, मीडियम, स्मॉल ब्रांड्स टू बी पार्टनर ऑफ द अदर कंपनीज. दे आर बेसिकली डूइंग इवेंट्स फॉर दैट. तो इन शॉर्ट वी अंडरस्टैंड फॉर इकोनॉमिक वे में अगर आप इकोनॉमिकली नहीं कर पा रहे हैं अपने कंसर्ट को, एक्टिविटीज को, तो ये कंपनीज आपको उस एक्टिविटी को पूरा करने में हेल्प करेगी, लेकिन उसके बदले वो अपना कंपनी का एडवर्टीजमेंट आपके कंसर्ट में करेगी. ठीक है, सो दिस इज ब्रांड, आपको क्या कहेंगे, ब्रांड स्पॉन्सरशिप. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? नाउ ब्रांड स्पॉन्सरशिप सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो मैम. So brand sponsorship में 4 major type of brand sponsorship है. The product could be launched as the manufacturer brand. यहाँ पर इन्होंने जो लिया है, यहाँ पर इन्होंने कुछ terms ले लिया है. The product could be launched by the manufacturer brand. जैसे Philips manufacturer है, Bajaj, Amul. I don't know why they use that, but याद रखिएगा कि जो brand sponsorship होता है, या तो आप एक individual person के लिए sponsor करोगे, या तो छोटी कंपनी के लिए बड़ी कंपनी भी कई बार स्पॉन्सर करती है. ठीक है, जैसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने दूसरी कंपनी के साथ दूसरे कंपनी के लिए स्पॉन्सर किया, मतलब इन शॉर्ट उनको पैसे दिया, और उसके लिए स्पॉन्सरशिप जो होगा वो किसी के लिए भी हो सकता है. आपकी छोटी कंपनी के लिए हो सकता है, बड़ी कंपनी के लिए हो सकता है. को ब्रांडिंग भी कई बार होता है, जहां पर एक ब्रांड दूसरे ब्रांड के साथ अपने दोनों एडवर्टीजमेंट करते हैं. जैसे एक ब्रांड मिलकर दूसरे ब्रांड के साथ, जैसे मैकडी के साथ पेप्सी, ठीक है, मैकडी के साथ कोक, तो कहीं ना कहीं दे आर डूइंग को ब्रांडिंग, मतलब एक ब्रांड के साथ दूसरा ब्रांड मिलकर के एडवर्टीजमेंट कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप. या तो किसी म्यूजिक के लिए कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई एक्टिविटी के लिए कर रहा है, कोई पार्टी के लिए कर रहा है, कोई दूसरी कंपनी के लिए स्पॉन्सर कर रहा है. और इंडोर्समेंट का मतलब होता है जब कोई सेलिब्रिटी आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता है, तो दैट इज इंडोर्समेंट, राइट? सो इंडोर्समेंट में और स्पॉन्सरशिप में डिफरेंस है. स्पॉन्सरशिप में एडवर्टीजमेंट किया जाता है, कोई एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के एडवर्टीजमेंट करती है, कोई एक्टिविटीज के लिए करती है. ठीक है, सो ब्रांड स्पॉन्सरशिप इट इज अ मीन थ्रू whom टू सेल द प्रोडक्ट. ठीक है, सो यहाँ पर डिफरेंट वेज है इसका. यस अंकित? मैम ब्रांड एंड सब ब्रांड में क्या डिफरेंस है? ब्रांड में और सब ब्रांड. ब्रांड और सब ब्रांड मतलब ब्रांड एक हुआ आपका कि जैसे मान लीजिए हल्दीराम, दैट इज अ ब्रांड, ओके. एंड सब ब्रांड जो उसकी सब्सिडियरी ब्रांड है, सब्सिडियरी कंपनी, जैसे प्रभु जी, दैट इज इट सब्सिडियरी ब्रांड. ठीक है, तो सब ब्रांड इट मींस दैट इट इज अ सब्सिडियरी ब्रांड जिसका जो स्टॉक मतलब जिसका शेयर जो होता है 50% से अबव अगर किसी पेरेंट कंपनी के पास होती है, तो वो होता है पेरेंट कंपनी जिसके पास शेयर है, और जिसका शेयर है वो होती है सब्सिडियरी कंपनी. तो सब ब्रांड का मतलब होता है जो आपके सब्सिडियरी ब्रांड है, मतलब जो आपके अंडर में जो ब्रांड्स है. आगे बात समझ में? जैसे फ्यूचर ग्रुप जो था, जैसे रियलमी का सब ब्रांड डाइजो हो गया मैम. वेरी गुड. और एक और है, जैसे आपका फ्यूचर ग्रुप का पहले सब ब्रांड बहुत सारा था, जैसे ब्रांड फैक्ट्री हो गया, बिग बाजार, खैर बिग बाजार तो अमेज़न का हो गया,
तो दिस इज सब ब्रांड, ठीक है, जो सब्सिडियरी कंपनीज एक ब्रांड के अंडर में रहती है। क्लियर हो गया अंकित? अंकित Yes, ma'am, क्लियर हो clear गया? हो हाँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ ब्रांड स्पॉन्सरशिप की अगर हम बात करें तो इट मीन्स थ्रू होम टू सेल द प्रोडक्ट, ये मीन्स एक तरीका, एक वेज है। यहाँ पर अलग अलग तरीका है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप में इन्होंने कुछ नाम दिया है, यहाँ पर 4 तरीके हैं। 4 तरीके से आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हो ब्रांड स्पॉन्सरशिप। पहला है मैन्युफैक्चरर ब्रांड, यहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे आप, द प्रोडक्ट कुड बी लॉन्च इन द स्टोर एज मैन्युफैक्चरर ब्रांड, यानी ऐसे मैन्युफैक्चरर ब्रांड जो होंगे वो अपने ही स्टोर में प्रोडक्ट को सेल करेंगे अपने ही ब्रांड के नाम के साथ, जैसे बजाज, ठीक है। द प्रोडक्ट कुड बी लॉन्च इन द स्टोर, मतलब स्टोर में आएगा एज द मैन्युफैक्चरर ब्रांड, यानी मार्केट में जब ये आएगा तो ये मैन्युफैक्चरर के नाम से ही आएगा, बजाज के नाम से आएगा। जैसे अमूल था, अमूल भी क्या था, मैन्युफैक्चरर ब्रांड था। तो पहला तो ये हो गया मैन्युफैक्चरर ब्रांड, मतलब अब मैन्युफैक्चर जो करा उसी के नाम से जब वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल। सेकंड होता है प्राइवेट ब्रांड। प्राइवेट ब्रांड का मतलब क्या होता है ना कि यहाँ मैन्युफैक्चरर जो होता है वो सेल कर देता है प्रोडक्ट टू द सेलर, मतलब अब बनाया किसी और ने और उसको सेल किसी और को कर दिया, ठीक है, अब वो आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज अ मैन्युफैक्चरर ब्रांड जो खुद से प्रोडक्ट बनाएगा, सेम नाम से प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा। प्राइवेट ब्रांड में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर, 1 मिनट प्लीज, मैं बताऊंगी आप लोग सबको, लेकिन इतना ज्यादा डाउट पूछोगे तो क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगा, रुकिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। मैन्युफैक्चरर ब्रांड में क्या होगा आपका कि प्रोडक्ट जो होगा दैट इज लॉन्च किया जाएगा मार्केट में, उसको सेल किया जाएगा, लेकिन सेम ब्रांड नेम से सेल किया जाएगा। सेकंड है प्राइवेट ब्रांड, यहाँ पर आप किसी सेलर को यूज करोगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या तो आपने किसी होलसेलर को यूज कर लिया, जैसे वीवो है ना, दैट इज यूजिंग बिगर फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, सो दे आर यूजिंग द सेलर्स, और यहाँ पर सेलर का नाम ही यूज होगा, यानी कि यहाँ मैन्युफैक्चरर का नाम यूज नहीं होगा कि किसने प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पर सेलर अपने नाम से उस प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो दैट इज प्राइवेट ब्रांड। एक होता है लाइसेंस ब्रांड। अब लाइसेंस ब्रांड में क्या होगा कि जो सेलर होगा, द सेलर ऑफ द एनी, बोल सकते हैं कि एनी, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, द सेलर ऑफ द जेंट्स वियर लाइक शर्ट, ट्राउजर्स में यूज द लाइसेंस्ड नेम, वो अपने लाइसेंस्ड नेम को यूज करेगा, ब्रांडिंग नेम को यूज करेगा, सो दैट इज द लाइसेंस ब्रांड। और को ब्रांडिंग का मतलब होता है जब 2 कंपनी एक दूसरे के साथ मिल करके प्रमोट करती है ब्रांड को, तो दैट इज को ब्रांडिंग, जैसे इंटेल एचपी के साथ, आइडिया एचडीएफसी के साथ, so that is known as brand। देखो ब्रांड स्पॉन्सरशिप में बस इतना शॉर्टकट में याद रखना। अरमान आई गेस क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछो एक बार अरमान। यस मैम, प्राइवेट ब्रांड का किसी एग्जांपल दीजिए ना, जैसे प्राइवेट ब्रांड में जैसे आपका हो सकता है ना, जैसे बिग बाजार कैन बी पॉसिबल, जैसे वो क्या करते हैं ना कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं अपने नाम से, मतलब बिग बाजार से खरीदा, ठीक है। सो प्राइवेट ब्रांड में मैन्युफैक्चरर सेल कर देता है प्रोडक्ट सेलर को, हु गिव इट प्राइवेट नेम, अपना नाम दे दिया, ठीक है, लेकिन इसके लिए एग्जांपल बिग बाजार इज नॉट सूटेबल, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर में वही हो गया, फिलिप्स, आईबीएम, बजाज, अमूल, ये सब अपने नाम से प्रोडक्ट को सेल करते हैं मैन्युफैक्चरर। प्राइवेट ब्रांड में प्राइवेट कंपनी अपना नाम को यूज कर लेगी आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, अपने नाम से उसको सेल करेगी, दैट इज प्राइवेट ब्रांड। और इसका एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड होते हैं, जैसे फैब मॉल हो गया, नीलगिरीज हो गया, ठीक है। अब इसका मैं बताती हूँ आपको, फैब मॉल। सो प्राइवेट ब्रांड में द नेम इज यूज्ड बाय द प्राइवेट कंपनी बिकॉज द मैन्युफैक्चरर आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू देम। एंड द थर्ड वन इज द लाइसेंस ब्रांड, इन विच द सेलर जो होगा, जो भी सेलर होगा जो प्रोडक्ट को सेल करेगा, वो अपने प्रोडक्ट को बनाएगा और जो मार्केट में ऑलरेडी ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है उनको सेल करता जाएगा, ठीक है। और को ब्रांडिंग एक जो टर्म आया जो मैंने आप लोगों को बताया, लाइसेंस्ड में आपके बहुत सारे हैं, जैसे मिक्की माउस, सम मैन्युफैक्चरर मार्केट लाइसेंस ब्रांड, द सेलर ऑफ द चिल्ड्रन प्रोडक्ट, चिल्ड्रन प्रोडक्ट को सेलर कैसे लाइसेंस नेम को यूज करते हैं, दैट इज बैटमैन, मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, दीज आर द लाइसेंस्ड ब्रांड है ये सारे। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा दैट इज को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग में मैंने बताया कि 2 कंपनी मिल करके जो ब्रांडिंग करती है, इसका मैंने कुछ एग्जांपल बहुत सारे हैं, इसमें लिख लो सारे एग्जांपल्स, इसमें लिखिए एग्जांपल्स। स्टारबक्स एंड स्पॉटिफाई
Starbucks and Spotify. Starbucks is a coffee shop और कॉफी कंपनी है, ठीक है। तो दैट इज अ यूएस बेस्ड थी, लेकिन अभी टाटा ग्रुप ने इंडिया का परचेज कर लिया है, ठीक है। तो स्टारबक्स एंड स्पॉटिफाई, ठीक है। नाइकी एंड एप्पल, ठीक है। GoPro and Red Bull. So these are the companies who are doing co-branding. So with two companies are doing the advertisement together. Okay, so I guess the point is clear. Point clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Brand sponsorship. In brand sponsorship, there are the 4 ways. The first one is the manufacturer brand, private brand, ठीक है। Third one is licensed brand, and the fourth one is co-brand. Co-branding, yes. हाँ, Okay, so the next point is brand development. Next one is brand development. Next point is brand development. How we can develop the brand? ब्रांड डेवलपमेंट में यहाँ पर कुछ तरीके हैं। ब्रांड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने ब्रांड को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ब्रांड डेवलपमेंट में यहाँ कुछ तरीके दिए हुए हैं, इसमें मैं लिखवा नहीं रही हूँ, आप लोग को सिर्फ इलैबोरेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन में क्या क्या पॉइंट कर लिया? पहला किया हमने ब्रांड पोजिशनिंग, एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज, राइट, ठीक है। सेकेंड हमने क्या किया? ब्रांड नेम सिलेक्शन, एंड इन द ब्रांड नेम सिलेक्शन वी डिड 3 पॉइंट्स. First one is individual brand name, second one is umbrella brand name, third one is company brand name. Then we understand about the brand logo. Brand logo क्या होता है? So that is a pictorial representation. And after that we did brand sponsorship, in which we did 4 type of brand sponsorships are there, types. First one is manufacturer brand, private brand, third one is licensed brand, and the fourth one is co-branding. So let's move toward the next type of the branding strategy. जो next तरीका होगा, next strategy होगा, that is brand development. Brand development. How we can develop the brand? So here there are some points which is given in your book. The first one is brand extension. सेकेंड वन इज लाइन एक्सटेंशन. इसको लिखिए, फिर मैं समझा रही हूँ, और ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है क्योंकि बहुत रिलेटेबल है सारे टर्म्स, इसीलिए बिल्कुल प्रॉपरली इसको कहीं नोटबुक में अच्छे से लिखते जाइएगा. फर्स्ट वन इज ब्रांड एक्सटेंशन. सेकेंड वन इज लाइन एक्सटेंशन. पहले में ब्रांड एक्सटेंशन है, सेकेंड लाइन एक्सटेंशन है. Third one is product flanking. Second है आपका line extension, product flanking, FLANKING, flanking. Next one is multi-brand. फिर लिखिए new brands, multi-brands, फिर लिखिए न्यू ब्रांड्स, फिर लिखिए ब्रांड रेजुवेनेशन. REJUVENATION, रेजुवेनेशन, ब्रांड रेजुवेनेशन. एंड नेक्स्ट में लिखिए ब्रांड रीलॉन्च. ठीक है. So these are the strategy under the brand development: brand extension, line extension, product flanking, multi-brands, new brands, brand rejuvenation, brand relaunch. अब ये सारे टर्म्स ध्यान दीजिएगा क्या है. तो सबसे पहला जो टर्म है that is brand extension. ब्रांड एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टूल है. इट मींस एक्सटेंडिंग द सक्सेसफुल ब्रांड नेम. मान लीजिए एक ब्रांड आया मार्केट में
और वो सक्सेसफुल हो गए, जैसे रिबॉक वन ऑफ द सक्सेसफुल ब्रांड है। अब उसने क्या किया, ब्रांड एक्सटेंशन में क्या होगा कि जब ब्रांड का नाम मार्केट में हो गया तो उसी ब्रांड का नाम बाकी प्रोडक्ट में भी यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अमूल का भी एग्जांपल यहाँ पर सुटेबल है, बारबी का भी एग्जांपल ले सकते हो, बारबी डॉल का एग्जांपल, जैसे पहले बारबी डॉल आया, फिर बारबी बुक्स आने लगे, फिर बारबी कॉस्मेटिक्स, बारबी फर्निशिंग। सो इन शॉर्ट दे आर यूजिंग द सेम ब्रांड नेम फॉर सेलिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। तो एक तरीके से वो जो दोनों टर्म्स मैंने बताया ना, दैट इज द सेम थिंग। मैगी भी एग्जांपल ले सकते हो, मैगी यू कैन टेक द एग्जांपल। जैसे मैगी में पहले सबसे पहले क्या सेल करते थे, वो नूडल्स से वो फेमस हो गए, नेस्ले का ब्रांड है मैगी। अब मैगी के नाम से सॉस आ रहा है, मैगी के नाम से पास्ता आ रहा है, मैगी के नाम से मसाला आ रहा है। So the same brand name is using for extending or introducing the new product in the market. That is brand extension. That is brand extension. Clear हो गया सबको? ब्रांड एक्सटेंशन क्लियर हो गया। यहाँ पर आप अपने ब्रांड को, नेम को, एक बार ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो नए और ज्यादा मोर प्रोडक्ट को लाने के लिए आप उसी नाम का यूज करोगे। और कई बार वो जो जरूरी नहीं है, इट विच मे और मे नॉट बी रिलेटेबल टू द कोर ब्रांड। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपने मैगी सेल कर रहे हो, नूडल सेल कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर आप मैगी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट को लाओगे, नहीं। इट कैन बी रिलेटेबल और इट कैन नॉट बी रिलेटेबल, बट यू कैन यूज द सेम ब्रांड नेम फॉर द अदर प्रोडक्ट्स अंडर द सेम कंपनी। मतलब मैगी से, नेस्ले की कंपनी है मैगी, अब मैगी के नाम से ही वो मल्टीपल प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ रहा है, मैगी मसाला, मैगी सॉस, मैगी पास्ता। So that is the example of brand extension. Clear हो गया? What is brand extension? ब्रांड को एक्सटेंड करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट लेकर आएंगे, सेम नाम यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? जैसे अमूल मिल्क, अमूल बटर, अमूल चीज, अमूल ब्रेड, अमूल स्प्रेड, एवरीथिंग कम्स अंडर द अमूल। So that is Amul, that is not Amul, that is brand extension. So Amul can be the example, Barbie can be the example, Maggi can be the example of this brand, brand extension. ठीक है, next one is the line extension. Line extension. अब ब्रांड एक्सटेंशन में क्या चीज था कि जरूरी नहीं है कि दोनों प्रोडक्ट में कोई रिलेशन हो, जरूरी नहीं था, लेकिन लाइन एक्सटेंशन में है। अब जैसे तुम लोग में से कितने लोग हो जो कोलगेट यूज करते हो? हाउ मेनी ऑफ यू? So I think so many students are using that. One of the renowned toothpaste company is that. ठीक है, हाँ, so many of the people are using that. So do you think that there are varieties in that? So there is one simple one, there is one Colgate powder, there is, I think, Colgate salt, Colgate herbal. There are multiple varieties of that. Colgate gel, right? So that is line extension. When you are increasing the number of product of the same type, यानी जो कैटेगरी सेम टाइप का प्रोडक्ट होगा आपका, जैसे कोलगेट है तो कोलगेट ही रहेगा, कोलगेट में मतलब टूथपेस्ट ही आप नया लेकर आ रहे हो। ठीक है, आप नया जो लेकर आ रहे हो प्रोडक्ट, दैट इज रिलेटेड विद द टूथपेस्ट। ठीक है, और उसमें आपने नाम जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, जैसे कोलगेट जेल कर दिया, कोलगेट के साथ जेल मिक्स कर दिया, कोलगेट हर्बल कर दिया तो कोलगेट के साथ हर्बल। लेकिन यहाँ पर जो कोर नेम है, मतलब जो कोलगेट है, वो चला आ रहा है सारे प्रोडक्ट के साथ, तो दैट इज नोन एज लाइन एक्सटेंशन। इसको क्या बोलेंगे? लाइन एक्सटेंशन। इट मींस introducing the additional items in the given product category, यानी सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में you are increasing the number of the product. एग्जाम्पल में कोलगेट, वही मैंने बताया, कोलगेट ने बहुत सारी चीज लेकर आया, कोलगेट कैल्सी गार्ड, कोलगेट टोटल, कोलगेट जेल, कोलगेट एक्टिव। तो ये सारे के सारे आपके टूथपेस्ट के टाइप है, लेकिन नाम सबके लिए सेम यूज हो रहा है, कोलगेट कोलगेट कोलगेट, बट जो सेकेंड नेम है दैट इज चेंजिंग, तो दैट इज लाइन एक्सटेंशन। ठीक है, when you are introducing new product in the same product category and you are using the same name as well of the brand, like Colgate you are using for increasing the number of the product, so that is known as line extension. That is known as line extension. You can also take one of the एक और example आप ले सकते हो, like Surf Ultra, Surf Excel, International Surf Excel। तो ये सारे सर्फ एक्सेल है, लेकिन सब में नाम, सेकेंड नेम चेंज है कहीं ना कहीं। ठीक है,
सो दैट इज लाइन एक्सटेंशन. इसको क्या बोलेंगे? लाइन एक्सटेंशन. क्लियर हो गया सबको? यस मैम. तो ब्रांड एक्सटेंशन और लाइन एक्सटेंशन में डिफरेंस क्लियर हुआ? ब्रांड एक्सटेंशन में एक ही ब्रांड के नाम से नए नए प्रोडक्ट, और जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट ब्रांड से रिलेटेड हो. भाई नूडल्स चीज से कहाँ रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है, तो जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट टाइप सेम हो लेकिन नाम सेम यूज होगा, तो दैट इज ब्रांड एक्सटेंशन. यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप सेम होगा और नाम भी सेम होगा ब्रांड का, बट मे बी सेकेंड नेम से हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे कि कोलगेट जेल इज डिफरेंट फ्रॉम कोलगेट एक्टिव. क्लियर हो गया? दैट इज लाइन एक्सटेंशन. क्लियर Yes. everyone? Okay. Yes, यस ma'am. मैम. Yes, Ankit, you have doubt, please ask. Yes, Ankit. मैम ब्रांड एसोसिएशन में मेरे को डाउट. मैं बताती हूँ what is brand association. See, how many of you want to purchase Royal Enfield? कितने लोगों आप लोग खरीदना चाहते हो Royal Enfield? और कितने लोगों के पास होगा भी, I guess. So somehow you are not thinking that Royal Enfield is a bike, but it is something which is relate you with your personality. True? Most of the person who want to go to the gym, they always want to carry the Adidas suit track, right? So it is something which is helpful for you to associate with brand because of your personality is like that. Okay? So brand association in a certain way, when the customers are emotionally attached with the brand because of their personal choice, because of their personality, because of the trust, that is known as brand association. जब आपने आपको ब्रांड से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ मानते हो, आपका एक ट्रस्ट लेवल ऐसा क्रिएट होता है जहां पर आप दूसरे ब्रांड की तरफ मूव करने के लिए सोच भी नहीं सकते हो. दैट इज ब्रांड एसोसिएशन. क्लियर हो गया? आई Yes, बस ma'am. समझ में अंकित? यस मैम आ गई. Okay. So in the next class, we are going to continue with the brand development. I will start again from the brand extension. Okay. So don't worry if you are not able to understand that point. I'll clarify it once again. We'll start with that topic only. ठीक है. जितना टॉपिक कराया है सबको अच्छे से रिवीजन करना. कोई भी डाउट होता है तो क्लास में जरूर पूछ सकते हैं आप. ठीक है. चलिए. Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay.